بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 14 سال بعد براہ راست فضائی رابطہ بحال ہو گیا۔ بنگلہ دیشی ایئر لائنز بیمان کی پہلی براہ راست پرواز ڈھاکہ سے کراچی پہنچ گئی۔ لینڈنگ پر بنگلہ دیشی ایئر لائنز کی پرواز کا واٹر سیلیوٹ سے استقبال کیا گیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کراچی جناح ٹرمینل پہنچے، پرواز کے مسافروں کا استقبال کیا اور کیک کاٹا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان براہ راست پروازوں کی بحالی دونوں ممالک کے تعلقات میں اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ 14 سال کے بعد پھر ایک دفعہ یہ پرواز رواں دواں ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کا فضائی رابطہ محبت، امن اور تجارت کے فروغ کا ذریعہ بنے گا۔ گورنر کامران ٹیسوری کہتے ہیں یہ ایئر لائن دونوں ممالک کے مسافروں کے لیے محبت کا پیغام بھی دے گی۔ بھارت نے پاکستان اور بنگلہ دیش میں دہشت گردی کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ ہیرو بننا ہے تو فیلڈ مارشل کی طرح بنو، جس نے اپنے بڑے ملک کو دھول چڑھا دی۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کا متحد ہونا بھارت کے منہ پر تماچا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش مل کر بھارت کا مقابلہ کریں گے۔ اشتراک نہیں ہوگا بلکہ مختلف سیکٹرز میں بنگلہ دیش اور پاکستان کا تعاون جاری اور ساری رہے گا۔ کئی سالوں کے بعد سازشیں دم توڑ گئی۔ یہ دوریاں پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں، انتہا پسند ہندو نریندر مودی اور بھارت ہے، جو کہ پاکستان میں ہی نہیں دہشت گردی کر رہا بلکہ بنگلہ دیش میں بھی اس نے سازشوں اور دہشت گردی کے عمل کو جاری رکھا ہوا ہے۔ پاکستانی عوام، بنگلہ دیشی قوم، ان کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ آپ نے ہیرو بننا ہے تو پھر فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب جیسے کام کریں۔ اپنے سے 5 گنا زیادہ طاقتور ملک بھارت کو وہ شکست دی ہے کہ جس کی دھول وہ آج تک چاٹ رہا ہے۔ آئندہ اگر وہ بنگلہ دیش اور پاکستان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا تو ہم دونوں ملکوں کی قومیں مل کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ بنگلہ دیش کے ڈپٹی ہائی کمشنر کہتے ہیں یہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے لیے عظیم لمحہ ہے۔ دونوں ممالک میں تعلقات مزید گہرے ہوں گے۔ تجارت، سیاحت، صحت، تعلیم سمیت کئی شعبوں میں باہمی شراکت داری کو تقویت اور توسیع ملے گی۔ It's a great moment for the relations between Bangladesh and Pakistan. Bangladesh National Carrier Biman today started flying between Dhaka and Karachi, and we are confident that will extend the relations in the field of trade, tourism, in the health sectors, education, and in many multiple sectors. I see that in the coming days, the relation between Pakistan and Bangladesh will be more strengthened. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا رمضان ریلیف پیکج لانے کی تیاریاں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی 1 کروڑ مستحق افراد کو 110 ارب روپے سے زائد کا ریلیف پیکج دینے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ تفصیل جانتے ہیں شعیب نظامی سے۔ جی شعیب۔ جی، رمضان ریلیف پیکج کے لیے جو ہے اس سال پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا پیکج دینے کی تیاری ہے۔ تقریباً 110 ارب روپے سے زائد کا یہ پیکج ہوگا، جس میں تقریباً 1 کروڑ افراد کو فائدہ پہنچایا جائے گا۔ پرائم منسٹر نے سلسلے میں خصوصی ہدایات جاری کی اور ان ہدایات کے مطابق وفاق جو ہے تقریباً 30 ارب روپے سے زائد کا جو ہے وہ رمضان ریلیف پیکج دے گا۔ پنجاب تقریباً 45 ارب روپے کا، سندھ 25 ارب روپے کا، جبکہ خیبر پختونخوا 10 سے 13 ارب روپے کا رمضان ریلیف پیکج کی ورکنگ کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وفاق کا جو رمضان ریلیف پیکج ہوگا اس میں پہلے سے زیادہ رقم جو ہے وہ فراہم کی جائے گی اور پہلے سے زیادہ جو ہے وہ افراد تک پہنچنے کی کوشش کی جائے گی۔ تقریباً 40 سے 50 ہزار روپے ماہانہ کمانے والے بھی اس پیکج کے ذریعے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، شعیب نظامی اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ لاہور میں جعلی قرار دیے گئے واقعے کی لاشیں مل گئیں۔ داتا دربار آئی ماں بیٹی بھاٹی گیٹ کے قریب کھلے گٹر میں گر گئیں۔ ماں بیٹی کا گٹر میں گرنا انتظامیہ نے جھوٹا قرار دے کر شوہر کو حوالات میں بند کر دیا۔ 17 گھنٹے بعد ننھی پری ردا کی لاش نالے سے نکالنے کے منظر نے دل چیر کر رکھ دیا۔ واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بعد میں کیا نا وہی کام پہلے ہوتا، لاپرواہی نظر آئی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پہ جو کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو فیملی ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ جو ہے نا فیک ہے۔ لاہور میں انتظامی غفلت نے ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا۔ شور کوٹ کی سعدیہ کی 10 ماہ کی بچی ردا بھاٹی گیٹ کے قریب کھلے نالے میں جا گری، جسے بچانے کے لیے ماں نے بھی چھلانگ لگا دی۔
बेटी ना दादा साहब सलाम करने आई है, तो वो इधर ना उसकी पहले बच्ची गिरी है, तो बाद में उसने छलांग लगाई है। लाइटें वगैरह कुछ भी नहीं है इधर सब जब गाड़ियाँ आगे रुकती हैं उनकी रोशनी होती है। अहले खाना ने अमवात का जिम्मेदार इंतजामिया को करार दिया। चाचा ने कहा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहता तो जिंदगियां बच जाती। लापरवाही नजर आई ना हुकूमत की जानिब से, या जो भी उनको डेडलाइन मिली है कि ये फेक है, ये झूठ है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। रेस्क्यू 1122 ने अहले खाना का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। रेस्क्यू 1122 ने ये ऑपरेशन एक लम्हे के लिए नहीं रोका। कहने को तो कोई शख्स कुछ भी कह सकता है, ऑपरेशन से बाहर लोग क्या बातें कर रहे हैं ये हमारा कंसर्न नहीं है। कजन ने बताया पुलिस ने सादिया के शौहर पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाकर हिरासत में ले लिया। पुलिस वालों ने सादिया का है हस्बैंड मुर्तजा, उनको अरेस्ट किया, उसके साथ उनके कजन को अरेस्ट किया। सीसीपीओ बिलाल सिद्दीक कमियाना ने दावा किया लड़की के वालिद के कहने पर शौहर से महज पूछताछ की गई। लड़की ने इनिशियली कहा था कि इनके आपस के रिलेशन कोई अच्छे नहीं थे, तो उस वजह से उससे पूछगिछ की थी। क्वेश्चन आंसर किया कैसे इंसिडेंट हुआ कैसे। सादिया की लाश रेस्क्यू को भाटी गेट से 3 किलोमीटर दूर आउटफॉल रोड से मिली, जबकि नन्ही परी रिदा की लाश 17 घंटे बाद जाए हादसा से 8 किलोमीटर दूर से मिली। बुध की रात हादसे के बाद सादिया का खानदान सड़क पर दुहाई देता रहा, इदारों को मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन इंतजामिया टस से मस न हुई। खबर को फेक और अहले खाना को झूठा करार दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन वालों ने ही ये बयान दिया है ना कि वास्ता वालों के साथ मिलकर कि जी ये फेक है, सब कुछ झूठ है। भाटी गेट हादसे पर DGLDA ने एक्शन लेते हुए दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम को मुअत्तल कर दिया। अफसरों में प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और सब इंजीनियर शामिल हैं। मरियम नवाज ने भाटी गेट वाक़ये पर खुले इजलास में सरकारी बाबुओं की क्लास ले ली। वज़ीर आला पंजाब का जिम्मेदार 5 अफसरान को गिरफ्तार करने का हुक्म। कहा कॉन्ट्रैक्टर से 1 करोड़ रुपए लेकर लवाहिकीन को दिए जाएं। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बड़े अफसर आएं बाएं शाएं करते रहे। मरियम नवाज ने कहा इस गफलत और कत्ल में ज़्यादा फ़र्क नहीं। कमिश्नर, DC, AC, LDA और वासा सब जिम्मेदार हैं। खातून की लाश 3 किलोमीटर दूर मिली। कह दिया गया वाक़या हुआ ही नहीं है। आपकी नाअहली से माँ बेटी मर गई। खातून के शौहर को थाने में बंद कर दिया गया। मैन होल खुला रह गया है, किसी को परवाह नहीं है। वहाँ AC साहब ये फरमा रहे हैं कि वो कभी वहाँ पर गए ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं वहाँ पे क्या हो। आप फिर किस चीज़ के असिस्टेंट कमिश्नर ने, जरा मुझे इस बात का जवाब। कंस्ट्रक्शन हो रही है, एहतियात कीजिए, वहाँ पर लाइट ही नहीं, कौन पड़ेगा खड़ा होके। इतनी बड़ी मुजरिमाना गफलत हम फैमिली को फैसिलिटेट करते, हम उनको चोर डाकू मर्डर बना के थाने में ले गए। आप लोगों की नाअहली और नालायकी और गफलत की वजह से न सिर्फ उसकी जान गई, उसकी 10 माह की बच्ची की भी जान। ट्विस्ट करने की कोशिश की जैसे वाकया ही नहीं हुआ। ये जो उस्मान यासीन है और ये जो सेफ्टी इंचार्ज है अनियाल, अहमद नवाज प्रोजेक्ट मैनेजर, असगर सिंधु है, जाहिद हुसैन जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा है, इन चारों को अरेस्ट करना पड़ेगा। लाहौर भाटी गेट हादसा, लाशें मिलने के बावजूद डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने वाक़ये को जाली खबर करार दिया। सहाफ़ी के सवाल पर डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चुनड़ का कहना था कि ऐसा कोई वाक़या पेश ही नहीं आया, झूठी खबर है, तहकीकात कराई हैं, ये फेक न्यूज़ है, आप लोग चेक कर लें। आज को एक वाक़या लाहौर में रूनुमा हो गया, जहाँ दाता दरबार के बाहर सीवरेज में एक खातून गिर गई। नहीं, वो फेक न्यूज़ है, आप चेक करें। सर असली है, मैयत मिल गई है सर, वो पता कराया, वो फेक न्यूज़ है। ओके ओके जी। लाहौर में भाटी गेट के करीब मैन होल में गिरकर जाँ बहक माँ बेटी की मैयतें आबाई इलाके शोरकोट में कुछ देर में पहुँचा दी जाएंगी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमरुज़्ज़मान से। जी कमर। बिल्कुल, इस वक्त हम शोरकोट के गांव अल्लाह यार जोता में मौजूद हैं, जहां की रहायशी सादिया और उनकी 9 माह की बेटी लाहौर में खुले मेन होल में गिरकर जाम हक हो गई थी। उनकी दोनों माँ बेटी की मैयतें कुछ देर तक यहाँ आबाई गांव में घर में पहुँचने वाली हैं। उनके अजीज़ो कारब यहाँ के जो लोग हैं बड़ी तादाद में घर के बाहर जमा हैं, अहले खाना से ताज़ियत भी कर रहे हैं। इंतज़ामिया की तरफ से हैवी लाइटिंग भी लगा दी गई है ताकि यहाँ पर जो एम्बुलेंस जब पहुँचे दिक्कत का सामना ना करना पड़े। माँ बेटी की नमाज जनाजा जुमा को दिन 11 बजे मकामी हाई स्कूल की ग्राउंड में अदा की जाएगी, जिसके बाद उनको यहाँ के जो आबाई कब्रिस्तान है वहाँ सुपुर्द खाक किया जाएगा। यहाँ जो है लाहौर से उनकी मैयतें जो एम्बुलेंस में लेकर यहाँ पर रवाना कर दी गई थी, जो कुछ देर तक जो यहाँ पर पहुँचने वाली हैं। असील इंतजामिया के ज़िला इंतजामिया के अफसरान, पुलिस अफसरान भी इलाके का दौरा कर रहे हैं, उनके लवाकिन से मुलाकात भी कर रहे हैं। जी
सानेह गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। हुकूमत सिंध ने अपोजिशन का मुतालबा मान लिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जिलिना मेमन की कमिश्नर कराची की तहकीकाती रिपोर्ट पेश होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालती तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। हाजिर सर्विस जज के जरिए सानेह की इंक्वायरी कराई जाए। अदालती तहकीकात का फैसला किसी सियासी जमात के दबाव पर नहीं किया। कीमती जाने गईं, हमने अपनी तहकीकात कर लीं, अपनी कोताहियां भी मानी, किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को लेटर भी लिख दिया गया है और लेटर में उनसे अपील की गई कि अदालती इंक्वायरी के लिए हाई कोर्ट के किसी हाजिर जज को मुकर्रर करें और फिर मजीद इसका तयन किया जा सके। पहले के अदवार में जिस तरीके से गैर कानूनी तौर पे इन अदवार में जो मेयर साहिबान थे या जो उस वक्त उस दौर की इंतजामिया थी, उन्होंने किस तरीके से आंखें बंद करके इनको लीजें दी और किस बिना पे थी, वो सारी चीज़ें उसके लिए हमने एंटी करप्शन को पाबंद किया कि एंटी करप्शन जो है उसकी इंक्वायरी करे, लोगों को बुलाएगी, उनसे इंटरोगेशन करेगी। सियासी पार्टी की हम जवाब दे अवाम को हैं। पहले दिन से हमने कहा था कि हम किसी भी सियासी जमात का प्रेशर नहीं लेंगे। उन सियासी जमातों ने इस अफसोसनाक और अंदुनाक वाक़े में भी सियासत करने की कोशिश की। जो शौदा हैं उनके घरों पे कल से जो है वो चेक्स जो है 1-1 करोड़ रुपए के वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। बानी पीटीआई की बीमारी छुपाई गई, हालात ज़बरदस्ती ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने बानी से मुलाकात ना कराने पर अडियाला जेल के बाहर धरना दे दिया। सलमान अकरम राजा के हमरा सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई के ज़ाती मौलेज मुलाकात के लिए अडियाला जेल आ रहे हैं। लीडर की जिंदगी का इशू है और इसको हम नॉर्मलाइज बिल्कुल नहीं होने देंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की और ज़ाती जो उनके डॉक्टर्स हैं उनकी मुलाकात हो। पूरी कौम अलर्ट रहें। आज रात हम यहीं अडियाला के बाहर ही रहेंगे। तमाम पार्लियामेंटेरियंस बेशतर आ चुके हैं और बाकी पहुंचने वाले हैं। बानी पीटीआई के ज़ाती मौलजीन अडियाला जेल रावलपिंडी के करीब पहुंच गए। ज़ाती मौलजीन में डॉक्टर आसिम और डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा शामिल हैं। दोनों डॉक्टर्स की फैक्ट्री नाके पर वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी और PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा से मुलाकात। बानी PTI के ज़ाती मौलजीन के वज़ीर आला KP और दीगर साथियों से मुशावरत जारी है। वफाकी हुकूमत ने बानी PTI की पिम्स में तिब्बी मुआयने की तस्दीक कर दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, बानी PTI को हफ्ते की शब पिम्स ले जाया गया, आंखों का मुआयना किया गया, वो बिल्कुल सेहतमंद हैं। वज़ीर आज़म के मोमिन खुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान गुज़िश्ता रोज़ तक इन खबरों की तरदीद करते रहे। बीमारी और अस्पताल मुंतकली की खबरों को जाली करार दिया। कहा, इलाज की ज़रूरत होती तो छुपाने की क्या ज़रूरत थी। के तिब्बी माहिरीन हैं, उन्होंने मुआयना किया अडियाला जेल के अंदर। उन्होंने ये रेकमेंड किया एक मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए इनको पिम्स ले जाना जरूरी है। गुज़िश्ता हफ्ते की रात आंखों के डॉक्टर्स हैं की सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया। पिम्स में उनका आंखों का मजीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पर उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया जरूरी हिदायत के साथ। बिल्कुल वाइटल्स हर चीज़ बड़ी स्टेबल थी। ही इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी। गलत खबर है, बिल्कुल फेक खबर है, फैब्रिकेटेड है। अपने पिम्स अस्पताल लाने की और फिर ऑपरेट होने की उनका आंख का या माइनर या मेजर प्रोसीजर की बिल्कुल गलत है। जो कोई सदाकत नहीं है। किसी एक डिजिटल मीडिया के हिस्से की तरफ से उड़ाई गई खबर और फैलते फैलते अब नेशनल मीडिया की जिन्नत बनी हुई है। PIA निजकारी की ट्रांजैक्शन से मुतालिक दस्तखत की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, PIA की निजकारी का अमल आज शानदार अंजाम को पहुँचा। आरिफ हबीब और उनकी टीम का पाकिस्तान की सनती तरक्की में नुमाया किरदार है। आरिफ हबीब ने तकरीब से खिताब में कहा, बहुत जल्द बड़ी तब्दीली नज़र आएगी। एयरलाइन का कंट्रोल मिलते ही दिन रात काम करेंगे। वज़ीर आज़म की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। आज वो निजकारी का अमल PIA के हवाले जो 1 माह पहले शुरू हुआ था, आज अपने बखूबी शानदार इंजाम पर पहुंचा है। PIA की प्राइवेटाइजेशन के मुआहदे के ऊपर आज दस्तखत हो गए। मुझे कामिल यकीन है आरिफ हबीब साहब और उनकी पूरी टीम न सिर्फ PIA को दोबारा औज इस्तरिया पर उसी मुकाम पर ले जाएगी जो कि PIA का मुकाम था, बल्कि आज के इस जदीद दौर में उससे भी आगे बढ़कर PIA को लेके जाएंगे।
मोहतरम आरिफ हबीब साहब और उनकी पूरी टीम के तमाम ऑनरेबल मेंबर्स को मैं जाती तौर पे जानता हूँ। एक पाकिस्तान के मायनाज बड़े कमिटेड बिजनेस एम्बेसडर्स हैं। जिस तरह आपने अपनी तकरीर में कहा कि आपकी जो पहली तरजीह होगी वो पैसेंजर्स की आरामदेह सफर, उनकी इज्जत, तौकीर और यकीनन सेफ्टी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, मुसल्लह अफवाज वतन अजीज़ के दिफा के लिए हम वक्त मुकम्मल तैयार हैं और हर किस्म के खतरात से निमटने की सलाहियत रखते हैं। ISPR के मुताबिक भावलपुर छावनी के दौरे पर फील्ड मार्शल को कोर की ऑपरेशनल, तरबियती और इंतज़ामी सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर ने खैरपुर टामियावाली में तरबियती जंगी मशकों का मुशाहिदा किया, जवानों की पेशा वराना महारत और अमली तैयारी को सराहा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भावलपुर गैरीजन का दौरा किया, जहां उन्हें कोर की ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खैरपुर टामेवाली में तरबियती जंगी मशकों, स्टेट फास्ट रिजॉल्व का मुशाहिदा किया और जवानों के बुलंद हौसले, पेशा वराना महारत और अमली तैयारी को सराहा। जवानों से खिताब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया कि मुसल्लह अफवाज मुख्तलिफ शोबों में बड़ी तब्दीली के अमल से गुजर रही हैं। दौरे हाजिर में जंग की नौयत बदल चुकी है। मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजिकल जंगी सलाहियत जिस्मानी तदाबीर की जगह लेगी। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए जहनी तब्दीली अहम जरूरत है, इसलिए मुसल्लह अफवाज तेजी से जदीद टेक्नोलॉजी अपना रही हैं। इससे पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जब बहावलपुर गैरीजन पहुंचे तो कमांडर बहावलपुर कोर ने उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की, शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। पाक बहरिया ने कंबाइंड टास्क फोर्स 150 की कमान संभाल ली। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने 14वीं बार कंबाइंड टास्क फोर्स CTF 150 की कमान संभाली। कमान संभालने की तकरीब कंबाइंड मेरीटाइम फोर्सेस हेडक्वार्टर्स बहरीन में हुई। पाक बहरिया की जानिब से कोमोडोर मोहम्मद यासिर ताहिर ने कमान संभाली। सऊदी शाही बहरी फोर्सेस के कोमोडोर फहद अल जवेद ने कमान हवाले की। कमान संभालने के बाद कोमोडोर मोहम्मद यासिर ताहिर ने गैर कानूनी बहरी सरगर्मियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का ऐलान किया। तकरीब में बहरीन में पाकिस्तानी सफ़ीर और बहरी अफसरान ने भी शिरकत की। पाकिस्तान इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा, बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शामिल न होने का फैसला किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी की मीडिया ब्रीफिंग, कहा फ़लस्तीन पर हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। खुलूस नियत से गज़ा अनबोर्ड में शामिल हुए, जिसका मकसद गज़ा में अमन का क़याम है। Security Council remained deadlocked on this issue. General Assembly issued a number of resolutions, and this all failed to prevent the Israeli onslaught. In this backdrop, the Board of Peace is a glimmer of hope for Palestine. It is a misconception that joining Board of Peace is any way connected to any Abraham Accord. Pakistan's positions remain unchanged. We will not become a party to the Abraham Accord. The BOP does not replace the United Nations. It has been established with a specific mandate. Pakistan has not decided to join the International Stabilization Force, and the membership of the Board of Peace does not imply contributing troops to IS. This was a collective decision taken with procedural formalities completed. Board is basically has 3 years membership, and after 3 years there is certain payment. So we are in it, and after 3 years we'll see. बनू के थाना जुमैल की हुदूद में सिक्योरिटी फोर्सेस और CTD के 2 ऑपरेशन, फितना खवारिज के 5 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द हलाक हुए और मुतादिद जख्मी हुए। CTD के ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द मारे गए और 7 जख्मी हुए। DIG CTD सुभान खान ने बताया, ऑपरेशन में अहम कमांडर जेवरान उर्फ अल बदरी मारा गया। हलाक कमांडर पुलिस, CTD और फोर्सेस को मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मतलूब था। खश दहशतगर्द जख्मी साथियों के साथ भाग गए। यूरोपीय यूनियन ने ईरान की पासदाराना इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। यूरोपीय खारजा पॉलिसी सरबराह का इजलास के मुताबिक ये एक फैसला कुन कदम है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने यूरोपीय यूनियन के इक़दाम को ख़ित्ते के लिए ख़तरनाक करार दिया। उन्होंने कहा, जंग रोकने की कोशिशें जारी हैं, मगर कोई यूरोपीय मुल्क इसमें शामिल नहीं। यूरोप आग बुझाने के बजाय भड़का रहा है और अमरीका के कहने पर नई स्ट्रेटेजी गलती कर रहा है। इराक़ची ने खबरदार किया कि ख़ित्ते में जंग की सूरत में यूरोप सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा और तवानाई की कीमतें बढ़ जाएंगी।
DGISPR کی جامعہ کراچی میں طلباء اور اساتذہ کے ساتھ خصوصی نشست۔ جامعہ پہنچنے پر اساتذہ، طلباء، فیکلٹی ممبران نے DGISPR کا پرتپاک استقبال کیا۔ خصوصی نشست کے دوران اساتذہ نے کہا، بغیر تحقیق معلومات پھیلانا معاشرتی انتشار کا باعث بنتا ہے۔ طلباء کا کہنا تھا، نوجوان نسل ملک کے دفاع میں کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سوشل میڈیا پر دشمن کے گمراہ کن بیانیے کو ناکام بنائیں گے۔ سوشل میڈیا پر مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن مہم سے باخبر رہنے کے حوالے سے DGISPR کی گفتگو انتہائی کارآمد رہی۔ DGISPR نے ہر طرح کے کوشچنز لیے اور نہ صرف ان کے کوشچنز لیے بلکہ ان کا ایک بریف جواب بھی دیا، اور اس طرح کے انٹریکشنز آئندہ اور فیوچر میں بھی ہونے چاہیے۔ انہوں نے ہمارے بہت سارے سوالات کے بہت سارے جوابات دیے اور ہمیں نالج پرووائڈ کی کہ ہمارے جو بھی سوالات تھے انہوں نے بالکل اچھے سے ان کے جوابات دیے۔ آج کا سیشن DGISPR کے ساتھ کافی مزیدار رہا، بہت انفارمیٹیو تھا، بہت کچھ جاننے کو سیکھنے کو ملا، جس طرح ہماری آرم فورسز ہمارے ملک کو نہ صرف بیرونی خطرات سے بلکہ اندرونی خلفشار سے بچا رہی ہیں۔ مزید اس طرح کے سیشنز ہوتے رہیں گے تو آگے آنے والی جنریشنز کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند رہے گا۔ میرا خیال ہے اس طرح کے سیشنز جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً ہوتے رہنے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کے سیشنز ہماری نوجوان نسل کا ایک نیریٹو ہونے میں، جو کہ پاکستان کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے، اس میں بہت ہی کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ DGISPR کا سیشن تھا جو کہ بہت اچھا رہا، اس میں سائبر سیکیورٹی اور ڈفرینٹ جو ہے پلیٹ فارم کے بارے میں بتایا تھا۔ ایونٹ مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ اس طرح کے انٹریکٹیو ایونٹس کروانے چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹ کا کانفیڈنس بوسٹ اپ ہو، بنیاد و مرسوس کے بارے میں جاننا کہ کس طرح سے ہمارے سولجرز نے اور کس طرح سے سارا کام کیا اور کس طرح سے ساری جنگ لڑی۔ وزیر اعظم پاکستان کی لیپ ٹاپ اسکیم کے چوتھے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کراچی میں مختلف شعبوں کے طلباء میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے۔ NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت سندھ کی 8 جامعات میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے جائیں گے۔ چوتھے مرحلے میں لیپ ٹاپ حاصل کرنے والے طلباء و طالبات نے حکومت کی اسکیم کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ فائنلی جب لسٹ آئی اس میں اپنا نام دیکھا تو بہت خوشی ہوئی کہ انشاءاللہ اپنی محنت کی وجہ سے جو ہے ایک چیز ملی ہے، اور بہت شکریہ پاکستان کی گورنمنٹ کا اس انیشیٹو کے لیے۔ لیپ ٹاپ اسکیم لانچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اس دور کے اندر جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کے مطابق تمام تر نوجوانوں کو جو ہے اسکلز فراہم کی جائیں، جس کی بنیاد پہ وہ جو ہے اپنی ایجوکیشن کو اور بہتر کر سکیں۔ آج کل کے زمانے میں لیپ ٹاپ از اے بیسک نیڈ جو کہ ہر ٹیلنٹڈ بچے کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا سلسلہ 2011 میں میاں شہباز شریف نے شروع کیا تھا۔ اب ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہاں پر لیپ ٹاپس اور سافٹ ویئرس اور کمپیوٹرز ہماری بیسک نیسیسٹیز ہیں، تو اس کے لیے ہمارا کام بھی اس طریقے کا ہے، تو یہ بہت اچھا انیشیٹو تھا۔ پرائم منسٹر صاحب کی بہت شکر گزار ہوں، یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے جو ہم اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرتا ہے اور اس سے ہم اسٹوڈنٹس میں اور محنت کا جذبہ پیدا ہے۔ NED یونیورسٹی میں چوتھے مرحلے کے تحت 32 طلباء و طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے۔ کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔